Hello everyone. Today we are going to do MEG4 Block 4 English Morphology and we are going to take Unit 3 that is Word Formation in English 2. Unit 3 हम करें इसके बाद हम Unit 4 करेंगे next. So Unit 3 में आज जो चीज़ें हम cover करने वाले हैं they are the classification of derivational affixes and then derivational prefixes, derivational suffixes, right? Because हम affixes कर रहे हैं तो prefixes, suffixes तो आएंगे ही of course. Then we'll talk about conversion or zero derivation and its cases, and we'll talk about compounding. And then there are two approaches for compounding. First is syntactic, and the second is semantic. So we will talk about those two approaches as well. I'll try to keep this video as short and as concise as I can so that you have enough time to study on your own. Let's start with the fact that let's say me and my friend we are talking, okay? We both are talking and then I tell her, "Okay, let's meet up tomorrow or let's meet around 11ish, okay?" And then she's like, "Yeah, okay, fine. Let's meet by 11ish." So now when I said this word 11ish, इसका मतलब ये नहीं है कि हम 11 बजे मिलेंगे या हम 11:05 पे मिलेंगे या 11:10 पे मिलेंगे. It's not a specific time, but what we meant is something around 11, 11:05, 11:10, anything is fine, but something around 11, okay? So that is possible. Now, if let's say I talk about I bought a new dress and the new dress is pinkish. Understand that it has to be a shade similar to pink, right? Maybe somewhere around between like pink and red, या pink and orange के बीच में कुछ color है, but it's pinkish. So this lemonish, pinkish, to be honest, these are not really proper words, but they do exist in the English dictionary and you can use these words. But if you will open a dictionary, you will not get to see after every word. Like after 11, you will not get to see 11ish. After pink, you will not get to see pinkish, right? Or sky bluish or sports grayish. You will not get to see these words. Why? Because with this ish, you can just make any amount of new words, right? It could be pinkish, greenish, bluish, yellowish, right? This is just about the colors. Similarly with numbers. So there are unlimited numbers. This book is maybe like 10ish, yeah? So then what? Am I going to create or add all these words in the English language? No. So these words you won't be able to see in the dictionary, but these words exist. They are grammatically correctish, yes, and you can use these words, there's no problem. So the words here are created. These words which are created here are new in the sense that they mean something different from the core words from which they are created, and their meaning cannot be related to the meaning of the core word in a systematic way. So it's when I say 11ish, it is related to 11, but it's not exactly 11. So this 11ish is a new number, it's a new time. So what did we do here? We created a new word. What did we do? We created a new word. So how are these new words created? We know we can also create new words by having affixes. So affixes are prefixes and suffixes. जो पहले लगते हैं prefixes, जो बाद में लगते हैं वो suffixes. इन दोनों को मिला के हमारे बनते हैं affixes. So हम affixes के through जो है नए words create कर सकते हैं. So इस unit में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि हम किस किस तरीके से नए words जो है वो create कर सकते हैं. So let's see, these are all the points which we learned in the previous unit about the derivational and inflectional affixes. I will not dwell into this, but let's come down and let's talk about the classification of the derivational affixes. तो हमने जो inflectional affixes पढ़े थे पिछले यूनिट में हमने उन्हें कैसे डिफाइन कर दिया था very easily we had defined them into the noun verb or adjective category. Let me change the color so you'll be able to see better. Yes, so we very easily define them in noun verb or adjective category, but हम ये सेम चीज जो है derivational affixes के साथ में नहीं कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते? इसके पीछे चार इंपॉर्टेंट रीजन है. चार इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो अभी हम देखेंगे. सबसे पहला जो रीजन है वो ये है कि अगर मान लीजिए मैंने एक जो है प्रीफिक्स लिया है विच इज दिस इज माई प्रीफिक्स. अब इसको अगर मैं किसी भी चीज के आगे लगाऊंगी तो वो उसका ऑपोजिट हो जाएगा, राइट? काइंड ऑफ. बट द थिंग इज फ्लेक्शनल अफिक्सेस में क्या होता था कि ये जो डिस है या तो ये सिर्फ नाउन के आगे लगेगा या सिर्फ प्रोनाउन के आगे लगेगा या फिर ये सिर्फ जो है एडजेक्टिव के आगे लगेगा. सॉरी, नॉट प्रोनाउन, बट या तो ये नाउन के आगे लगेगा या फिर ये एडजेक्टिव के आगे लगेगा. इट वाज काइंड ऑफ क्लियरली डिफाइंड. बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है. ये जो डिस करके मेरा प्रीफिक्स है ये मैं किसी नाउन के आगे लगा सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल नाउन इज ऑर्डर, उसके आगे मैंने लगा के क्या कर दिया? डिसऑर्डर. एडजेक्टिव इज लॉयल, उसके आगे मैंने क्या कर दिया? डिसलॉयल. या फिर वर्ब इज ओबे, उसके आगे मैंने क्या कर दिया? डिसओबे. सो व्हाट हैपेंड हियर, ये एक वर्ड जो है मैंने
नाउन वर्ब एंड एडजेक्टिव तीनों के साथ यूज कर लिया. सो हाउ विल यू डिफाइन इट ऑन द बेसिस ऑफ कि ये कौन से वर्ड के साथ लग रहा है? दैट इज नॉट पॉसिबल. एंड दिस इज द फर्स्ट रीजन दैट वी कैन नॉट डिफाइन देम ऑन द बेसिस ऑफ द type of the word which we are using. Okay, then let's take the second reason जो है वो ये है कि अगर मैं बोलती हूँ कोई इंसान खेलता है, right, he is a player. Someone who plays is a player. Someone who kills is a killer. Someone who runs is a runner, right? But someone who dies, is he a dyer? Or someone who understands, is he an understander? नहीं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक रूल में लगाने की कोशिश कर रही थी कि ई आर में जिसके आगे लगा दूंगी वो इंसान वो चीज करता है, जो एक्टिंग करता है वो एक्टर, जो ड्राइविंग करता है वो ड्राइवर, तो ये चीज मेरी हर जगह पॉसिबल नहीं हो पा रही क्योंकि जो मर रहा है वो डायर नहीं है. सो दिस इज नॉट अ वर्ड, राइट. सो अगेन ये इसकी बेसिस पे मैं डिफाइन नहीं कर पा रही हूँ कि जो मैं सफिक्स से प्रीफिक्स ऐड कर रही हूँ उसकी बेसिस पे मैं उसको डिफाइन नहीं कर पा रही हूँ. लेट्स कम टू द थर्ड रीजन डाउन. ओके, तो जैसे कि हमने अभी देखा था कि जो गार्डनिंग करता है वो गार्डनर, जो विलेज में रहता है वो विलेजर, जो टाउन प्लानिंग करता है वो टाउन प्लानर, जो टीनेज टीनेज में है वो क्या हुआ? टीनेजर हुआ. ओके, अगर किसी गाड़ी के तीन व्हील्स है तो लेट इट बी. एनीवे, यू गेट द पॉइंट कि हम इस तरीके से देखते थे चीजें कि ऐसी हो रही है. बट ये हर बार जरूरी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आप सोचो तो जो कुक करता है वो कुकर होना चाहिए. So someone who is a chef probably because he cooks should be a cooker. But a cooker is cooker जिसमें हम दाल और चावल बनाते हैं, right? That's a cooker. अगर कोई इंसान सबको चुप कराता है तो वो साइलेंसर होना चाहिए. Okay, not the one from Three Idiots, but वो साइलेंसर होना चाहिए जो सबको चुप कराता है. For example, a teacher in the class, if she is telling कि चलो तुम सब चुप बैठो और मेरी बात सुनो, then she should be a silencer. But silencer क्या होता है? जो गाड़ी में हम यूज करते हैं वो पार्ट हुआ. और वैसे ही स्टेपलर जो है ये कोई इंसान नहीं है. स्टेपलर इज द मशीन विच स्टेपल्स. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? These words, they do not refer to a person but they refer to an instrument that is used to do something. इस पे जो वर्ड का टाइप है उसके बेसिस पे या फिर मेरा जो ईआर है उसके टाइप के बेसिस पे मैं इसे डिफाइन नहीं कर सकती हूँ. ओके, एंड फाइनली हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं जो मेरा फोर्थ रीजन है. दिस इज द फोर्थ रीजन कि कोई चीज अगर जो है वो टूट सकती है तो मैं उसे बोलूंगी ब्रेकेबल. कोई चीज अगर पीने लायक है, कोई पानी जो है हम पोटेबल वाटर जिसे कहते हैं, इफ इट्स ड्रिंकेबल, राइट, अगर हम उसे पी सकते हैं वी कॉल इट ड्रिंकेबल. सिमिलरली इफ समथिंग विच यू एंड आई डू नॉट अग्री ऑन देन दैट वुड बी डिबेटेबल. बट ऐसे एबल लगा के हम सारे वर्ड नहीं बना सकते. एग्जाम्पल है पहला कि अगर कोई चीज गिर सकती है तो क्या हम उसे फॉलेबल बोलते हैं? नहीं. क्या ये गद्दी अच्छी है, इस पे हम सो सकते हैं, क्या हम उसे स्लीपेबल बोलते हैं? नहीं. सो सर्टेन वर्ड्स आर गुड एंड दे आर करेक्ट बट सर्टेन वर्ड्स आर नॉट करेक्ट. सो ये जो रूल है ये हर जगह एबल के साथ ही जो रूल है ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है. एंड दिस इज वाई दिस इज द फोर्थ रीजन कि हम इन्हें उतने आसानी से डिफाइन नहीं कर सकते जैसे कि हम इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस को कर पाते थे. डेरिवेशनल अफिक्सेस को डिफाइन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम आगे देखेंगे ही, हम डिफाइन कर सकते हैं वेरी इजीली. बट दीज आर द रीजंस कि हम उन्हें सिमिलर वे में डिफाइन नहीं करते हैं. Let me just read this part for you. Meaning based classifications seem to work for derivational prefixes but it fails with suffixes. Prefix पे तो वो काम करता था but suffix पे ये काम नहीं करता है. The reason may be that while derivational prefixes in English are rather few and are used to perform a well-defined function, the number of derivational suffixes is rather large and the effect they have on the meanings of the stems are quite variated, right? उनका जो काम है वो बहुत अलग अलग टाइप के काम जो है वो सफिक्सेस कर रहे हैं और ये बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम उन्हें इतनी आसानी से जैसे कि हम प्रीफिक्सेस को डिफाइन कर पा रहे थे वो पॉसिबल नहीं है. Okay, let's come down. So जब हमें डिफाइन करना है इन्हें, so we will have to follow certain approach. तो उस अप्रोच में क्या क्या चीजें हमें काउंट करनी. सबसे पहला है कि इट शुड बी अ गुड एंड कंसिस्टेंट रिजल्ट गिविंग मेथड. जो हमारा रिजल्ट है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए ऑफ कोर्स. इसीलिए उन्होंने क्या किया है कि जो सफिक्स है इट विल क्लासिफाई ऑन द कैटेगरी ऑफ द रिजल्टिंग वर्ड. क्योंकि हमने ऑलरेडी देख ही लिया था कि जो डिस है वो ओबे ऑर्डर सभी के साथ लग रहा है, नाउन एडजेक्टिव वर्ब सभी के साथ लग रहा है. तो हम क्या करेंगे, इस पे डिफाइन ना करते हुए कि डिस जो है वो मेरा एडजेक्टिव या फिर नाउन वर्ब है, मैं क्या किस पे डिफाइन करूंगी कि मेरा जो रिजल्टिंग वर्ड है
तो अगर मेरा रिजल्टिंग वर्ड जो है वो एक एडवर्ब है या वो एक नाउन है, तो मैं बोलूंगी कि ये जो है नाउन कैटेगरी में आता है, तो मैं रिजल्टिंग वर्ड पे डिफाइन करूंगी उसको, ठीक है। सो इससे हमें क्या समझ में आता है कि नाउन सफिक्सेस विल बी सब क्लासिफाइड इनटू दोस व्हिच फॉर्म नाउन फॉर्म्स, नाउन स्टेम्स, एडजेक्टिव स्टेम्स एंड वर्ब स्टेम रिस्पेक्टिवली। तो मेरा इनिशियल वर्ड जो है, let me just type it out. My initial word could be a noun, an adjective और a verb। इनमें से कुछ भी वो हो सकता है, लेकिन जो मेरा अल्टीमेट रिजल्ट है, जो रिजल्टिंग वर्ड जो है, जो मेरा रिजल्टिंग वर्ड है, अगर वो एक नाउन है तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी अ नाउन प्रीफिक्स, सॉरी दिस विल बी अ नाउन सफिक्स। सिमिलर केस में ही तीनों की केस में यही होगा। एडजेक्टिव भी जो है वो नाउन एडजेक्टिव या वर्ब किसी से भी एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो सकता है, वो सेम ही चीज जो है मेरी एडवर्ब में भी हो सकती है, सॉरी वर्ब में भी हो सकती है। सो इट इज पॉसिबल एट ऑल द इन ड्यूरिंग ऑल द केसेस। सो लेट्स सी इनका नाम क्या क्या दिया उन्होंने। दी सब क्लासेस ऑफ सफिक्स विल बी कॉल्ड डिनोमिनल, डी एडजेक्टिवल और डी वर्बल नाउन सफिक्सेस। जो नाउन को हटा देगा, पहले वो नाउन था अब वो नाउन नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव था और अब वो एडजेक्टिव नहीं है, तो क्या हुआ, हमने एडजेक्टिव को चेंज कर दिया, राइट, इनटू सम अदर फॉर्म, मे बी इनटू द वर्ब फॉर्म और इनटू द नाउन फॉर्म। सो वो क्या हो जाएगा, डी एडजेक्टिवल, डी एडजेक्टिवल। ओके, thus the term de adjectival verb suffix will denote a suffix which forms verbs from adjective stems। ओके, पहले एडजेक्टिव था अब नहीं है। whereas the term de verbal adjective suffix will denote a suffix which forms adjective from a verb stem। तो क्या किया मैंने, वर्ब था पहले अब वर्ब नहीं है, अब वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, तो मैं उसे क्या बोलूंगी, डी वर्बल एडजेक्टिव सफिक्स। एक बार और रीड करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके, सो let me come ahead and define these derivational prefixes। हम इन्हें अब आगे और डिफाइन करते हैं। सो अगर मुझे किसी चीज को नेगेट करना है तो मैं क्या लगा देती हूँ, अन, इन, डिस, नॉन, राइट, जैसे कि काइंड अनकाइंड, वांटेड अनवांटेड, कंप्लीट इनकम्प्लीट, राइट, दिस काइंड ऑफ वर्ड्स। अगर मैं चाहूँ तो मैं रिवर्स भी कर सकती हूँ या डिप्रिवेशन मेथड यूज कर सकती हूँ, कंट्रोल का डी कंट्रोल, राइट, थ्रोन का डी थ्रोन, ओन का डिस ओन। ऐसे ही आप बहुत सारे जो प्रीफिक्सेस है, माल, मिस, सूडो, ये लगा के आप वर्ड की मीनिंग चेंज कर सकते हैं। फिर नंबर्स के थ्रू या डिग्री या रैंक के थ्रू आप मीनिंग चेंज कर सकते हैं, माइक्रो, मिनी, सुपर, सब, अंडर, राइट। या फिर आप टाइम का यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल फॉर, प्री, पोस्ट। सो इस तरीके से आपके जो है प्रीफिक्सेस आप डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हम किसकी बात करें अभी, सफिक्सेस की। तो सफिक्स में क्या होता है, नाउन सफिक्सेस, जैसे कि आपने उसके आगे हुड लगा दिया या डम लगा दिया, इज्म लगा दिया, शिप लगा दिया, फ्रेंड, फ्रेंडशिप, राइट, बॉय, बॉयहुड। सिमिलरली अगर मैंने फुल एशिया लेस लगा दिया, राइट, सो केयर, केयरलेस, राइट, केयर, केयरफुल। So these kind of words, then is, in, ist, these are my more suffixes, phi, is, en, आप ऐसे काफी सारे words, I think you can think about those, and if you can think about any of those you can share it in the comment section, so maybe other people can go through those words. But this was about like noun adjective, this is about verb suffix, this is about adverb suffix, right? See here, noun suffixes जो क्या बनाते हैं हमें, ऐसे सफिक्सेस जो नाउन बना के देते हैं, वो मेरे क्या हो जाएंगे, नाउन सफिक्सेस। तो पहला पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि वो नाउन स्टेम ही है, जो वर्ड है मेरा इनिशियल जो वर्ड है वो खुद ही नाउन है और वो नाउन से नाउन में ही रहता है, तो वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनल नाउन सफिक्स। हो सकता है कि दूसरा केस कि वो एडजेक्टिव हो, पहले एडजेक्टिव स्टेम से बन रहा है लेकिन बाद में वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, नाउन में, तो वो क्या हो जाएगा, डी एडजेक्टिवल नाउन सफिक्स। क्योंकि पहले एडजेक्टिव था अब वो एडजेक्टिव नहीं रहा, तो मैं क्या कर दूंगी, डी एडजेक्टिव, और अब वो क्या बन चुका है, नाउन सफिक्स, तो वो नाउन सफिक्स हो जाएगा। सिमिलरली लास्ट केस मेरा हो सकता है कि वो एक वर्ब हो, वर्ब स्टेम हो, और वो अब क्या हो जाएगा, डी वर्बल, क्योंकि अब वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हम पहली कैटेगरी किसकी देख रहे हैं, नाउन सफिक्सेस की, तो अब वो वर्बल की जगह क्या हो गया, डी वर्बल नाउन सफिक्स। सिमिलरली इसके जो पॉसिबल कैटेगरीज है, उन्होंने एडजेक्टिव सफिक्स के बारे में बताया है, नाउन एडजेक्टिव सफिक्स के बारे में बताया है, वर्ब सफिक्स, एडवर्ब सफिक्स, सारे जो पॉसिबल केसेस है यू कैन गो थ्रू दोस। तो इसके एग्जाम्पल दिए हैं, नाउन से नाउन में जो कन्वर्ट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल एज लगा के बैग का बैगेज, बॉन्ड का बॉन्डेज, डम लगा के किंग का किंगडम, स्टार का स्टारडम, पहले भी नाउन था अभी भी नाउन है। अगर मैं डी एडजेक्टिवल नाउन सफिक्स देखूं तो फ्री, फ्री क्या हुआ मेरा, ये एडजेक्टिव हुआ, डिफाइन कर रहा है किसी नाउन को, ये एडजेक्टिव है। फ्री का मैंने क्या कर दिया, फ्रीडम। फॉल्स का मैंने क्या कर दिया, फॉल्सहुड।
तो अब ये क्या हो गया, पहले तो ये एडजेक्टिव था, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें नाउन सफिक्स ऐड किया, ये मेरा क्या बन गया, नाउन बन गया। ओके इसी तरीके से डी वर्बल नाउन, डिनोमिनल एडजेक्टिव्स, बहुत सारे एग्जांपल्स अलग अलग चीज़ों के आपको यहाँ देखने मिलेंगे। गो थ्रू दोज, रीड दोज एंड यू विल अंडरस्टैंड इट। I'll move forward to conversion और zero derivation. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कारपेट। कारपेट, व्हेन आई से आई वांट टू बाय अ कारपेट फॉर माय रूम, तो कारपेट से हम क्या समझ रहे हैं, रग है, रूम में बिछा सकते हैं, कालीन, दैट्स अ कारपेट। सो इट्स अ थिंग, राइट, इट्स अ थिंग। When I say I want my room carpeted, when I say I want my room carpeted, मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरा रूम में कारपेट लग जाए, मेरा रूम प्रॉपर अच्छा सुंदर कारपेटेड हो जाए। तो अब क्या मीनिंग हो गया, नाउ दिस carpeted इज नॉट अ नाउन एनीमोर, इट्स नॉट अ थिंग, इंस्टेड इट इज अ वर्ब, और उसका वर्ब फॉर्म में पास्ट में भी यूज किया हमने, सिर्फ carpet नहीं लिखा है, carpeted लिखा है। नाउन का कोई पास्ट फॉर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता, वर्ब का ही होता है पास्ट फॉर्म। तो carpeted की बात की, यानी अब हमने क्या किया, carpet को एज अ वर्ब यूज किया है। सो लेट्स सी, क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक ही चीज को नाउन की तरह भी यूज कर सके और वर्ब की तरह भी यूज कर सके। यस, उसके और एग्जांपल दिया, डर्टी, डर्टी, राइट, समथिंग कैन बी डर्टी और यू कैन मेक समथिंग डर्टी, राइट, शी इज डर्टिंग द हाउस, तो वो ये वर्ब हो गया। और अगर मैंने बोला कि दिस टेबल इज वेरी डर्टी, तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे बता रहा है कि टेबल गंदा है, तो ये क्या हो गया, मेरा एडजेक्टिव हो गया। तो हम ऐसे ही मल्टीपल, एक ही शब्द को जो है हम मल्टीपल वे में यूज कर सकते हैं। सो यूजुअली कैसे पता चलेगा मुझे कि क्या पहले कारपेट एज अ नाउन आया था या पहले कारपेट एज अ वर्ब आया था, राइट, कारपेट एज अ नाउन और कारपेट एज अ वर्ब। तो दोनों में से पहले क्या आया था, कार्पेट एज अ नाउन और कार्पेट एज अ वर्ब, हमें कैसे पता चलेगा, तो उन्होंने क्राइटेरिया के बेसिस पे बताया है कि इफ द वर्ड डिनोट्स अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट, then probably it is a noun, but if it denotes a quality, then it is primarily an adjective. If it denotes an action, then it is primarily a verb. Of course जो उनकी खुद की qualities है वो वही बता रहा है कि verb क्या है, verb action ही होता है ना मोस्टली। सो दिस इज वाई कारपेट क्या हुआ, कारपेट मेजरली तो एक चीज है, और उस चीज को हम क्या बोलेंगे, कोई भी चीज जो है वो नाउन होती है हमेशा, दिस इज वाई मेजरली इट इज अ नाउन, बट देन कारपेट इज अ कन्वर्जन टू वर्ब, हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, क्रिया में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से उल्टा अगर मैं और दूसरी चीजें देखूँ, तो अटैक इज प्राइमरीली अ वर्ब, लेकिन जो हम नाउन करते हैं, नाउन की तरह हम अटैक यूज करते हैं, वो क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया। और एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इंटेलेक्चुअल इज प्राइमरीली एन एडजेक्टिव, लेकिन अगर मैं इंटेलेक्चुअल एज अ नाउन यूज करती हूँ, तो नाउन की तरह वो क्या हो गया, एक कन्वर्जन हो गया। इसके अलावा और भी कुछ फॉर्म्स उन्होंने बताए, जैसे कि दे आर वेकेशनिंग इन शिमला, राइट, तो हम टी आई ओ एन या आई ओ एन यूज करके ऐसे एडजेक्टिव्स या वर्ब्स इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। सो इफ दे आर वेकेशनिंग इन शिमला, ये जो है मेरा एक नया मीनिंग मैंने वेकेशन वर्ड को दे दिया है, नाउ दिस हैज बिकम अ वर्ब, it's not just a noun but this is a verb now, they are vacationing in Shimla. इसी के और एग्जांपल्स हो सकते हैं, refill, recount, exact, etc. Okay, so let's see, classifying cases of conversion, और कौन कौन से conversion हो सकते हैं, verb base से noun में conversion हो सकता है, for example to cheat, to rebel, spy, right, adjectival basis से noun में convert हो सकते हैं, जैसे कि criminal, intellectual, noble, noble हमने कितना सुना हुआ है कि he was a noble, right, तो if I say he's a noble man, then he is a man, man is a noun, noble is the adjective, but हमने चौसर वगैरह के poems में पढ़ा हुआ है कि he was a noble, तो now that is defining, they are talking about a certain class, certain specific kind of people, that is a noun। दूसरे basis से भी हो सकते हैं, so these are some examples, conversion to verb, from किधर से हो रहा है, noun से verb में convert हो रहा है, adjective से verb में convert हो रहा है, other basis से हम उसको verb में convert कर सकते हैं, right, so इस तरीके से हमने conversion सारे देखे। Let's come to the last point, that is compounding। compounding दो तरीके की होती है, सबसे पहले मेरी अप्रोच हुई syntactic approach, okay, and दूसरी मेरी होगी semantic approach। तो पहले syntactic approach देखते हैं। तो पहली चीज हमें ये समझनी है कि कोई भी रैंडम दो वर्ड को हम साथ में रख देंगे कि कंप्यूटर, आइसक्रीम, तो ओके आइसक्रीम तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, बट कंप्यूटर, ग्लोब, ओके, अगर मैं कोई भी रैंडम दो वर्ड्स को जोड़ देती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नया अच्छा वर्ड बन ही जाएगा, ओके। सो
क्यों ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं कुछ भी जोड़ देती हूँ तो क्यों नहीं वर्ड बनेंगे। तो सबसे पहली चीज हम देख सकते हैं कि ओनली टू वर्ड कंपाउंड फॉर द मोमेंट। अगर हम सॉरी, अगर हम पहले जो है, वैसे तो मल्टीपल कंपाउंडिंग भी होती है, लेकिन फॉर नाउ वी विल जस्ट टॉक अबाउट द टू वर्ड कंपाउंडिंग। दो ही वर्ड को हम जोड़ेंगे, तो उनको हम तीन बेसिक टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे कि मेनली अभी हम हर चीज को तीन बेसिक टाइप में डिवाइड कर रहे हैं, नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब में। तो ये जो कंपाउंडिंग है इसको भी हम दो, अगर मैंने वर्ड वाला कंपाउंडिंग लिया तो हम वैसे ही इसको डिवाइड करेंगे, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। और जो सेकेंड वर्ड है उसको बहुत ज्यादा प्रेसिडेंस मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंस मिलता है। सेकेंड वर्ड को ही जो है हम हेड भी कहते हैं, ओके, हेड ऑफ दिस कंपाउंड। तो कोई भी कैटेगरी जो है मोस्टली या तो वो नाउन या एडजेक्टिव, लेट मी राइट हियर, नाउन, एडजेक्टिव या वर्ब के फॉर्म में ही मोस्टली होती है। एंड समटाइम्स देयर आर दीज पार्टिकल्स, बहुत रेयरली ऐसा होता है, बट पार्टिकल्स लाइक आउट, अप, पुट, राइट, दीज काइंड ऑफ वर्ड्स, जो कि इनसे मिलके भी कभी कभी हमारे कंपाउंड्स बन जाते हैं, कंपाउंड वर्ड्स बन जाते हैं, ओके। सो yes, I have already talked about द सेकेंड पोजिशन। जो भी किसी वर्ड का सेकेंड पोजिशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यस। तो सेकेंड पोजिशन जो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मोस्टली ये जो हेड का पोजिशन है ना, इसका जो भी फॉर्म होगा, मोस्टली मेरे जो कंपाउंड वर्ड्स हैं वो वही फॉर्म ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉल पेन, अगर पेन मेरा नाउन है तो बॉल पेन जो है वो अपने आप नाउन बन जाएगा। डार्क रूम, तो डार्क प्लस रूम मिला के मेरा क्या बना है, डार्क रूम, क्योंकि रूम जो है ये सेकेंड वर्ड है, यानी हेड कंपाउंड है, राइट। अब रूम जो है वो एक नाउन है, इसलिए डार्क रूम भी क्या हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो बिकम अ नाउन। सेम विद टैक्स फ्री, आईसी कोल्ड, राइट। जो भी मेरे वर्ड्स है मोस्टली ये होता है कि जो सेकेंड वर्ड है उसको हेड ऑफ द कंपाउंड बोलते हैं, और उसका जो भी टाइप होगा, दिस होल न्यू वर्ड विल ऑल्सो टेक दैट टाइप। अब ये भी अगेन नाउन प्लस नाउन, एडजेक्टिव नाउन, वर्ब नाउन पॉसिबल है, नाउन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एडजेक्टिव, वर्ड एडजेक्टिव, वर्ब एडजेक्टिव पॉसिबल है, नाउन वर्ब एडजेक्टिव एडजेक्टिव वर्ब वर्ब, कैसे भी इस तरीके से ये सब पॉसिबल है। लेट्स कम टू द सिमेंटिक अप्रोच। अब सिमेंटिक अप्रोच में वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो नया वर्ड है इसका कुछ ना कुछ सेंस होना चाहिए, राइट। द दोज वर्ड्स इन कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस अ कंपाउंड विच व्हेन ब्रॉट टुगेदर आर capable of producing a significant signification which is more than the sum of the signification of two words independently। इसको हम कैसे समझेंगे कि जब मैंने बोला आइस, आइस यानी ठंडा, ओके, और क्रीम यानी क्रीम होता है, ओके। लेकिन जब मैं इन दोनों को जोड़ देती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि बर्फ और क्रीम का मिक्सचर को हम आइसक्रीम बोल देते, नहीं। बट आइसक्रीम इज समथिंग विच इज अ डेजर्ट, इट्स स्वीट डिश, और जो कि सिर्फ बर्फ और क्रीम के मिक्सचर से बहुत ज्यादा कुछ आगे है। या फिर जब मैं बोलती हूँ डार्क रूम, तो सिर्फ ऐसा कोई रूम नहीं है जहाँ अंधेरा है। डार्क रूम इज अ रूम जहाँ पे फोटोग्राफर्स अपनी जो फोटोज हैं वो डेवलप करते हैं ताकि वो फोटोज को प्रिंट कर सके आगे जाके। तो आइसक्रीम इज नॉट जस्ट ठंडी क्रीम, और डार्क रूम इज नॉट जस्ट अ रूम विच इज डार्क, बट इट हैज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस। सिमिलरली ब्लैक बोर्ड इज कोई भी बोर्ड जो काला है वो नहीं है, बट ब्लैक बोर्ड इज समथिंग ऑन विच अ टीचर टीचर्स इन द क्लासरूम। सो दिस should have the capability, these two words randomly, जब मैंने बोला कंप्यूटर ग्लोब, ये दोनों मिलके कुछ भी ढंग का ऐसा कुछ सेंसफुल नहीं बना रहे हैं। मे बी हम और आप मिलके इसको एक नया वर्ड बना सके, बट हमें समझना होगा कि जब तक उसका खुद का एक स्पेशल मीनिंग निकल के नहीं आ रहा है तब तक हम उन्हें कंपाउंडिंग से जोड़ नहीं सकते हैं, ओके। सो ब्लैक बोर्ड एंड ब्लैक बोर्ड, अगर आप इसे समझेंगे तो ब्लैक बोर्ड जो है ये कंपाउंड ब्लैक बोर्ड से बहुत अलग है। सेम विद डार्क रूम, व्हाइट हाउस, राइट। व्हाइट हाउस, जो कोई भी व्हाइट हाउस नहीं, एक जो छोटा, अगर मैं डब्ल्यू और एच इसमें स्मॉल होता तो ये कोई भी घर होता जो सफेद रंग का होता, बट जब ये डब्ल्यू और एच कैपिटल है तो दिस इज दी व्हाइट हाउस, ओके, जहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट रहता है। अब एक चीज और हम समझते हैं कि जब भी हम कंपाउंडिंग करते हैं इसके तीन चार पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। पहला ये हो सकता है कि हम जो है उन्हें बस जोड़ के लिख दें, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, ओके, हम ऐसे लिख सकते हैं, सही है। हो सकता है हम उन्हें अलग अलग ही लिखें, ये भी पॉसिबल है, ओके। कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसके बीच में ये डैश लगा के उसे जोड़ देते हैं, ये भी सही है, गलत कुछ नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द वर्ड। तो उस वर्ड को बनाते टाइम जो भी रूल्स उन्होंने लगाए होंगे उस पर ये डिपेंड करता है। अब इसके आगे इन्होंने और एग्जांपल्स दिए, जैसे कि एक औरत जो काम करती है, सफाई करती है, क्लीन करती है, दैट इज अ क्लीनिंग वुमन। समवन हु किल्स जॉय इज अ किल जॉय, ओके।
Someone who is also a maid and a servant, that is a maid servant. बट कुछ कुछ चीजों जैसे कि ये तो मतलब बहुत इजीली समझ में आ रहे थे, कुछ कुछ चीजें जो है वो एकदम नया ही कुछ मतलब बनाती, जैसे कि ब्लॉक हेड, तो हेड को ब्लॉक करना नहीं हुआ, बट इट इज एक्चुअली समवन हु इज अ वेरी फूलिश पर्सन. एग हेड इज एन इंटेलेक्चुअल. रेड टेप इज ब्यूरोक्रेसी. लाल फीता शाही जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि ऑफिस ऑफिस और गवर्नमेंट के चलते चलते हमारे कोई भी काम नहीं होते हैं, तो दैट्स योर रेड टेप. तो इसी तरीके से जो है बहुत सारे वर्ड्स आप मिक्स कर सकते हो, लेकिन हर वर्ड को मिक्स नहीं कर सकते, ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी. अब हम लास्ट में आते हैं, हमने सिंटैक्टिक अप्रोच देख ली, सिमेंटिक अप्रोच देख ली, अब हमें सिंटैक्टिक सिमेंटिक या फिर कॉम्बिनेशन या फिर जनरेटिव अप्रोच जिसे कहते हैं. तो इसके लिए हम इधर आते हैं, द वुमन हु क्लीन्स इज अ क्लीनिंग वुमन, द मैन हु सेल्स बुक्स इज अ बुक सेलर. ओके, बट मैं ये नहीं बोल सकती कि ही इज अ बुक ग्रोअर, या फिर दिस वुमन सीम्स लाइक अ वुमन सो शी इज अ सीमिंग वुमन. सो ये पॉसिबल नहीं है, बट ये पॉसिबल है, राइट? दीज आर नॉट पॉसिबल बट दीज आर. तो इसी इसी के लिए कुछ रूल्स होते हैं, राइट? इसीलिए मैं बोल सकती हूँ कि freezing cold is possible, burning hot is possible, but freezing hot या burning cold is not possible, क्योंकि burning cold क्या ही होगा, freezing hot क्या हो सकता है? This is an oxymoron, of course, so maybe in poetry or something you could use it, but otherwise that is not making a lot of sense. इसके बाद उन्होंने कुछ और माइनर कंपाउंड्स के एग्जांपल दी, जैसे कि ऑथर पब्लिशर, सोशियो पॉलिटिकल, डिली डैलिंग, शेड द डिटेल्स. ओके, इधर पे जो है आपको 3 मोड्स ऑफ राइटिंग बताएं जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. बर्ड केज ऐसे लिख सकते हैं, बर्ड केज डैश के साथ लिख सकते हैं, या बर्ड केज हम स्पेस के साथ लिख सकते हैं, एंड दैट वुड ऑल बी ओके, राइट? वाइन बॉटल एक साथ लिखा है या फिर वाइन बॉटल अलग अलग लिखा है, ये भी ओके है. सो डिपेंड्स ऑन द वर्ड, कुछ को आप साथ में ही लिख सकते हो, कुछ को आप तीनों तरीके से लिख सकते हो, इट डिपेंड्स. So this is all which was in this unit. I hope this was clear. I will soon make the video of the other unit as well.